न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो च नादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन श्रुत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिष्टा पुराणी. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this tree with the weapons of detachment. So doing, one must seek the place from which, having once gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything has begun, in whom everything is abiding since time immemorial. So, इस चैप्टर में क्या हो रहा है अभी? ऊर्ध्वम मूला अधः शाखा. क्या बोलते हैं बैनियन ट्री को हिंदी में? अश्वत्थ ट्री. और इस ट्री का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है डिटेल में. इट्स एन एनालॉजी. और इस ट्री को एनालाइज किया गया है कि ये तो ट्री उल्टा है. तो उल्टा ट्री तो दिखता नहीं है हमको कहीं पे भी उस दुनिया में. है भाई, उल्टा ट्री नहीं है कहीं पे भी. उल्टा ट्री देखा कभी? लेकिन दिखता है कहाँ? शैडो में. अगर नदी के किनारे कोई पेड़ होगा अश्वत्थ का, बनियन का, तो उसका शैडो विल बी इन्वर्टेड. एंड देन दिस होल ट्री इज सिंबलाइज एक्सप्लेनिंग आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस. The three modes are the roots, because this is just like a tree is made on reflection on water. The tree is reflected, so this whole thing is reflected on material energy. Three modes are sustaining the nourishment of this tree. Maya is nourishing this tree of material existence. Then the leaves and twigs. There are varieties of animals in this tree. There is a lot of beautiful description of this in this chapter. Some roots are going up, some roots are going down, and the different fruits of this tree are dharma, artha, kama, moksha. Person is running up and down to eat this tree. Sometimes he is in difficulty, sometimes he is in trouble. We can discuss sometime. There is a lot of things in this tree. Very interesting. I don't know whether this book has a picture of that. Some books have the picture, because this is one of the beautiful philosophies developed in this tree, in this Bhagavad Gita. The whole our material existence and nothing but the inverted tree. This study, some of the books have a beauty. Yeah, here it is. The reflection is based on desires. The four fruits are dharma, artha, kama, moksha. Pious acts, impious acts are the roots going up and down. If you do pious acts, you go up. Impious acts, you go down. Yeah, and the dharma, artha, kama, moksha, these are the different fruits. And the leaves are different sense objects. And we can see animals, we can see snakes, we can see so many things in this tree. Basically, our whole material existence is there. ये संसार का पेड़ है पूरा. एंड देन इस पेड़ को समझ के क्या करना है? काट देना है. ये क्या हुआ? ये तो बोल रहे हैं कृष्ण जिसमें पेड़ को समझो और काट दो. क्या मतलब? बिकॉज हम छाया को सत्य सोच रहे हैं, इसलिए पहले उसको समझो फिर काटो. काट नहीं पाओगे. जब तक हम इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ पाएंगे, हम इस पेड़ को क्यों छोड़ेंगे? हम एक परछाई के पेड़ में घूम रहे हैं ऊपर नीचे, कुछ नहीं है इधर. वन इल्यूजरी ट्री.
तो पेड़ से कोई उतरने को बोल रहा, उतर ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो समझने का ना, पेड़ इट्स अ रॉन्ग प्लेस. Everybody is thinking the material life can make me happy. Even though सबको मालूम है कृष्णा एक गीता में सर्टिफिकेट देते हैं, क्या देते हैं? दुखालय. बहुत एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी बहुत सिंपल है, लेकिन इसको अपनाना बहुत मुश्किल है. क्या है? दुखालय में शाश्वत. कृष्णा ने सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया? उसके सर्टिफिकेट बावजूद भी हम इस दुनिया में भोग के बड़े बड़े प्लान बना के बैठे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, बड़े बड़े प्लान बना के बैठे. अभी मेरा इंद्रिय भोग थोड़ा कठिन चल रहा है, ये हो जाए फिर आराम से इंद्रिय भोग करूँगा. बस क्या कर रहे हैं, है ना? ऐसे तो सोच रहे हैं. एक जॉब मिल जाए तो इंद्रिय भोग फिर आराम से करूँगा लेट के, कुछ हिलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. एक बिस्तर में लेट जाऊँ, सारा इंद्रिय भोग हो जाए. हिरण्या कशिपु. आजकल तो हिलने का ही मन नहीं होता है ना. इंद्रिय भोग का बहुत प्रबल दिल में प्रभाव रहता है. हम लोग को याद है कॉलेज में थे, क्लास जाने की कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, हम बिल्कुल पढ़ रहे, और इंद्रिय भोग की इच्छा इतना प्रबल, इतना फोर्सफुल रहता है. सो किस तरह इस पेड़ को ये समझना कि एक्चुअली इस दुनिया में कोई आनंद नहीं है, आशा नहीं, उसको ज्ञानी बोलते हैं. ज्ञानी का परिभाषा यही है ना. ज्ञानी को इतना समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भोग नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता असली आनंद किधर है. ज्ञानी को ये पता चल जाता है ये तो परछाई है, लेकिन उसको इतना दिमाग नहीं, अरे परछाई है तो असली पेड़ होने का ना, परछाई किसकी है? ये बहुत बड़ा चीज है, उसको नहीं समझ पाता. जैसे हम वो लिक्विड ब्यूटी का स्टोरी देख रहे थे, जो ज्ञानी आदमी है वो समझ जाता है ये शरीर में सुंदरता हो ही नहीं सकती, ये तो ऑल द ब्यूटी द वुमन कैन डिस्प्ले इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, शंकराचार्य सेज, ऑफ बोन्स, ब्लड एंड मसल. कह रहे ये हाड़ मांस का शरीर ही है, इसको क्या सुंदर बोलोगे? तो ज्ञानी आदमी वो होता है जो इस दुनिया के जो वैरायटी है उससे आकर्षित नहीं होता, उसको ज्ञानी बोलते हैं. तो ज्ञानी भी को नमस्कार करना चाहिए. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले अगर आप एक्चुअल सन्यासी को देखोगे, इवन वो इम्पर्सनल मार्ग का है, उसको नमस्कार जरूर कर लेना, बिकॉज उसने इस दुनिया का असली सन्यासी, नाटक का कोई फायदा नहीं, असली जिसने इस दुनिया में इंद्रिय भोग को हाथ धो दिया है, उसको नमस्कार करना चाहिए. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्य यतते सिद्ध, उसको सिद्ध पुरुष बोलते हैं. हजारों में एक ऐसा आदमी मिलता है जो दुनिया ये समझ जाता है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ से उतरो, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन किस पेड़ में चढ़ो ये मालूम नहीं उसको. जैसे आप गलत पेड़ में चढ़ गए, फल नहीं है, खाली टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना, कांटे काट रहे हैं, हाथ इधर उधर फंसे हुए हैं, उससे उतरो ना, लेकिन उतर नहीं पा रहे. इतनी इच्छाएं हैं, इस पेड़ से नहीं उतर पा रहे. कितने लोग नीचे चल रहा रहे हैं, उतरो उतरो, कृष्णा बोल रहे हैं उतरो उतरो, नहीं उतर पा रहे. देखो प्रभुपाद जी इस परपट में देखिए कितनी बारी बोलते हैं सरेंडर 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 सरेंडर. ऑल वन हैज टू डू इज सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. बस एक सरेंडर हो जाओ, शरण ले लो. नहीं हो सकता. सरेंडर मतलब जो कृष्ण जी बोल रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बस. कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बाकी ऑटोमेटिकली आगे लक्षण आ जाएंगे. क्या चीज़ है सरेंडर? जो कृष्ण में भगवत गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं उसको मिथ्या नहीं समझिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस. आपका जीवन सफल, वैकुंठ धाम चले गए. लेकिन अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. कृष्ण जी बोल रहे हैं, शायद गलत होगा, है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया. सरेंडर का क्या मतलब होता है? इसलिए बोलते हैं ना दंडवत डिसाइपल. दंडवत डिसाइपल ना गुरु को देखता है, एक बड़े लंबा एक दंडवत मार देता है, लेकिन एक चीज़ फॉलो नहीं करता. दंडवत के लिए रेडी है वो. जैसे देखा महाराज, गुरु महाराज, एक शब्द जब किया, नहीं महाराज टाइम नहीं है. पढ़ते हो किताब, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ठीक है, उसको बोलते हैं दंडवत डिसाइपल. तो अभी दंडवत डिसाइपल बने हुए हम लोग, ठीक है. तो इसको प्रभुपाद जी अगेन 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 बार बार बोल रहे हैं, मतलब उसको सीरियसली लीजिए. अगर आचार्य, इतने महान आचार्य
इस परपट में कितना बारी रिपीट किया? 4 बारी आप शब्द सरेंडर देख सकते हैं, अभी देख रहा हूँ मैं भी 4 बारी। क्यों बोला इतना बारी 4? वेरी इंपॉर्टेंट, शरणागति। अगर हम सरेंडर कर गए किसी तरह, भाग्यशाली हो गए, तो व्हाट विल हैपन टू अस? ऑटोमेटिकली वी गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया एक्चुअली परछाई है, ये तो देखना मुश्किल नहीं है, इसको समझना है। वैसे इस दुनिया में 4 तरह के आनंद हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो कॉल्ड रिलीजियसिटी, सो कॉल्ड मनी मेकिंग कंफर्ट्स, सो कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सो कॉल्ड लिबरेशन। ये 4 तरह के आनंद इस दुनिया में लोग ढूंढते रहते हैं। ठीक है, और वैकुंठ में प्रेम पुमार तो महान, 5वां चीज आता है, पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम। जब तक आप कृष्ण प्रेम की पोजीशन में नहीं पहुंच सकते, आप असली पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। आप परछाई वाले पेड़ पे ही घूमते रहोगे बेवकूफ़ों की तरह, कुछ नहीं है उस पेड़ में, उसमें कोई आनंद नहीं है, मूर्खता है। लेकिन आप उस पेड़ से नहीं उतरोगे, उस पेड़ से अटैच हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आदमी एक टहनी पे पकड़ा हुआ है, टहनी को पकड़ा हुआ है, और उस टहनी में 2 चूहे उस टहनी को खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 चूहे उस टहनी को खा रहे हैं, और नीचे एक बड़ा सांप वेट कर रहा है, और बिल्कुल पेड़ के मतलब एक नीचे वाली ब्रांच में, और ज़मीन पे एक बड़ा शेर वेट कर रहा है आपका। लेकिन तब भी आप इस पेड़ से नहीं उतर रहे, क्योंकि टॉप में एक हनी कोम्ब है, जिसे बीच बीच में एक हनी के ड्रॉप गिरता है, और उस आनंद को आप असली आनंद समझ के पेड़ से नहीं उतर रहे। वो पेड़ की जो 2 चूहे हैं उसको डे और नाइट बोलते हैं। हमारा मृत्यु निश्चित है, हर एक क्षण हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तब भी हम इस पेड़ की टहनी टूटने वाली किसी भी दिन, लेकिन हम पेड़ से उतर के भगना नहीं चाहते। क्यों? जबकि इतने वहाँ प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? सांप वेट कर रहा है डसने के लिए, नीचे शेर वेट करना है, आओ नीचे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और चूहे खाए जा रहे हैं दिन रात। चूहे मतलब दिन और रात, है ना? दैट एग्जाम्पल इज गिवन इन भागवतम। एनी मोमेंट हम गिरने वाले हैं, लेकिन इस पेड़ से नहीं उतर सकता। क्यों? वो मुंह में ना हनी गिर रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। सो एक्चुअली द लिटिल enjoyment that we get in this world, which is not real enjoyment, actually will not allow us to reject this world. Okay? इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस से कभी नहीं समझ पाओगे। आप सोचते रहोगे थोड़ा कठिनाई है, बट आई एक्सेप्टेड। अरे कभी कभी तो मुंह में थोड़ा हनी गिरता है ना, थोड़ा आनंद है, but we are not able to come out. What we have to do therefore we have been repeating this again and again. Patiently we have to hear what Krishna is saying. That's all. थोड़ा धीर होके, 2 तरह के लोग होते हैं, धीर और थोड़ा धीर होके सुन लो क्या कृष्ण बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। क्या श्लोक है? दुखालयम अशाश्वतम। नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धि परमां गतः माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धि परमां गतः। कृष्ण जी बोल रहे हैं, माम उपेत्य, जो असली पेड़ में चढ़ गया, जिसमें असली फल है और आनंद है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया जो है एक्चुअली अशाश्वत है। दिस इज वर्ड इज अ शैडो। ये मुश्किल नहीं है समझना। दिस बॉडी लुक्स रियल, ये शरीर असली शरीर लगता है एक्चुअली। इसलिए जब थोड़ा कटता है, खून आता है, क्यों आपको सरप्राइज होता है? बिकॉज आप अभी भी ये सोच रहे हो आध्यात्मिक शरीर है, परछाई हुआ ना हुआ। ये दुनिया जो है, इसमें कुछ कठिनाई होती है, गर्मी होती है, ये होता है, आपको थोड़ा बेचैनी होती है, इतना मौसम क्यों खराब हो रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा? बिकॉज वैकुंठ धाम में मौसम बहुत अच्छा होता है। क्यों लोगों की इच्छा है जब घूम रहे हैं चलो एसी लगा दें? क्यों? वैकुंठ धाम में हमेशा एसी ही चलता है, मतलब एसी ही है पूरा, वो परफेक्ट क्लाइमेट, बॉडी इटर्नल, एंड देन वहाँ पे रिलेशन भी रियल है। इस दुनिया में रिलेशन भी शैडो है, सब कुछ दिखता है, ये माँ है, ये बाप है, ये बच्चा है, ये बीवी है, कुछ नहीं एक्चुअली, वो खाली एक ऑब्जेक्ट है। सब परछाई है,
सत्य का परछाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीरो इस दुनिया में किसी को, एक क्रिकेट स्टार को हीरो बनाता है कोई आजकल ऐसे मूर्ख फिल्म स्टार। पहले कलयुग में, पहले युग में ये सब एंटरटेनर्स होते थे, इनको हीरो कोई नहीं बनाता था। थे ये लोग भी, जैसे आप नंद महाराज के टाइम भी देखे ना, कुश्ती का मैच था ना, देखने आए थे ये सब लोग थे, लेकिन ये नहीं उसको राजा बना दिया, थोड़ा कुश्ती किया। तो आजकल तो थोड़ा एक बैट में बॉल मार दे उसको लोग उसका पूजा शुरू कर देते हैं नेक्स्ट डे। तो ये हीरो तो ये भी परछाई है। हीरो दिल में जानने की इच्छा है, क्या हीरो है असली? कृष्णा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये सब चीज़ का परछाई है, कृष्ण का परछाई है। किसी को हीरो बना के लोग बैठे रहते हैं, उसके गुणगान गाते हैं सुबह रात, करते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। और दूसरा चीज, ये शरीर को लोग सत्य मानते हैं। ये शरीर तो कुछ टाइम है, बस ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला। देन इस दुनिया में जो रिश्ते हैं उसको भी सत्य मानते हैं, वो भी टेम्पररी है। और जो इंद्रिय भोग से आनंद मिलता है वो भी टेम्पररी है। यही संस्पर्श जब होगा, देन आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। यही संस्पर्श जब होगा, ये इंद्रिय भोग है ये तो दिखता नहीं, क्या है, टेम्पररी है। आप कितना भी इंद्रिय भोग के लिए प्रयत्न करें, बड़े बड़े अरेंजमेंट बनाएं, विपरीत होता जाता है, बाद में विपरीत हो जाता है, इवन मेहनत करने के बाद। भागवत में बड़ा एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक गधा है, पूरा दिन मेहनत करता है, घास मिलती है खाने के लिए, फिर गधी के पास जाता है और लात पड़ती है मुंह पे इतने मेहनत के बाद भी गधी उसके मुंह पर लात मारती है, वो भी नहीं। तो इस दुनिया में जितना भी भोग की इच्छा करोगे, मुंह में लात पड़ती है उसके बाद, कह रहे नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, और इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सरेंडर कर लो, क्यों इतना रजिस्टर करते हो। देखो प्रभुपाद जी हमेशा अपना लैंग्वेज, लेक्चर में क्या लैंग्वेज बोलते थे, ऑल फूल्स, रास्कल्स, डीमंस, क्या क्या थे, क्या क्या शब्द थे, फूल्स, रास्कल्स, रोग्स, थीव्स, हाँ, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्यों ऐसा शब्द जोर जोर के बोलते थे कि हम लोग सरेंडर नहीं कर रहे। वो सरेंडर को उकसाने के लिए, ऑल फूल्स, रास्कल्स, डन हेडेड। Why? Many lectures you see, he thrust at the end, all fools, rascals. क्यों भाई, एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? Why don't we accept what Krishna is telling? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो उसको? इतनी अकल आ गई तुमको कि उनके शब्द को तुम नहीं, चलो छोड़ो, बोलते हैं कुछ लोग, बोलते रहते हैं, जैसे होता है ना, बहुत लोग बोलते रहते हैं, हम सुन लेते हैं इधर से सुनो उधर से। तो कृष्ण के शब्द भी हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। That is our problem. So therefore Prabhupada is saying again and again in this purport, 4 बारी कृष्ण को सरेंडर कर लो। If you surrender to Krishna, surrender means accept what Krishna is saying, obey what he is saying, make it the mission of life. If we do that, then we can understand the real form of the tree. आप अपने आप नहीं समझ सकते। Just like ब्रह्मा, वो भी अपने ट्री का सोर्स जानना चाहते थे। ब्रह्मा इज बॉर्न ऑन अ लोटस, तो उनको भी ये हो गया कि कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्या जीवन का मेरा लक्ष्य है। पढ़ा अपने भागवत में है। तो ब्रह्मा ने अपने लोटस से नीचे आए थोड़ा, वो गर्भोदय विष्णु से आता है, लेकिन उतना पहुँचना उनके लिए भी आसान नहीं है। थोड़ा टाइम आया, फिर उनको उसका अंत ही नहीं दिखा, वापस आके बैठ गए लोटस में। बीच में कृष्ण ने एक दो बारी झटका भी दे दिया उसको बड़बड़ आके बैठ गए, कुछ पता नहीं। तो फिर उनको क्या हुआ, कृष्ण ने क्या साउंड दिया, ता पा, तपस्या करो भाई, ऐसे नहीं मिलता। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भगवान का दर्शन इतना पता चल सकता है आपको, थोड़ा अगर एक्सपीरियंस हो, वो भी आसान नहीं है ज्ञानी बनने में। इतना पता चल सकता है कि ये दुनिया में सुख नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना इति, ना इति, ना इति, उसको बोलते हैं नेति, नेति कर सकते हो। मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस दुनिया में कुछ आनंद नहीं है, ये सब रिश्ता मिथ्या है, इतना आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ना। तो भी बहुत पूरी जिंदगी लग जाएगी आपको, एक नहीं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म लग जाएंगे। उसके बाद आदमी को समझ आता है, इतना ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब नहीं थी, लेकिन क्या असली है, दैट इज स्पेशल, वो आप नहीं पकड़ सकते। उसके लिए आपको कृष्णा को सरेंडर करना पड़ेगा।
सपोज आप कृष्ण को सरेंडर नहीं करेंगे, इतना ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, इस दुनिया में भोग नहीं है, आनंद नहीं है। और आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, बने इंडिया में हजारों बने, ये बैंड हर दिन बजाएंगे वो, इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, बस फुल स्टॉप। इसके आगे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते वो? क्योंकि वो कृष्ण की शरण नहीं लेते, कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते कि शरण, भगवान का डेफिनेशन भी नहीं मालूम उनको। भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का एक सुंदर रूप है, कभी नहीं एक्सेप्ट करते। एक्चुअली वो नास्तिक लोग हैं, लेकिन इतना समझ जाते हैं ज्ञानी कि इस दुनिया में भोग नहीं है, करेक्ट, लेकिन कहाँ भोग है वो उनको मालूम नहीं। वो बहुत बहुत बड़ा चीज़ है। जस्ट लाइक मैं लिक्विड ब्यूटी वाला एग्जाम्पल बता रहा था, इतना आप समझ सकते हो कि शरीर में सुंदरता नहीं है, लेकिन वो सुंदरता को क्यों ढूंढ रहे हैं, असली सुंदरता किधर है, इतना तो आप देख के समझ जाते हो। कह रहे कोई बहुत हैंडसम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के समझ जाओ क्या है, एक तो टिश्यू है बस, क्या है इसमें बड़ा चीज़ है ना, चेहरे शीशा में देखते रहते हैं क्या है फाइनली। लेकिन इतना तो समझ गए आप, है ना। लेकिन सुंदरता, लेकिन सुंदरता क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्यों ढूंढ रहे हैं सुंदरता, इसका आंसर आपको ये लोग नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर आता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। एक्चुअली सुंदरता भगवान की होती है, और इस परछाई में हम उस सुंदरता को ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं? एक्चुअल ब्यूटी इज इन कृष्णा, लेकिन वी आर सर्चिंग समथिंग लुक्स लाइक कृष्णा, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस इज द शैडो वर्ड। सो ये समझना थोड़ा दिमाग लगता है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर, आसान भी नहीं ना। ब्रह्मा तो चले पहले जीव थे, तो उनको तपस्या करके समझना पड़ा, और वही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। जब तक तपस्या नहीं करोगे, आपको क्या भगवान है समझ नहीं आएगा, क्या सत्य है समझ नहीं आएगा। ये समझ आएगा कि सत्य ये शरीर नहीं है, बिकॉज ये शरीर टेम्पररी है, ये सत्य ये रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशन सब नौटंकी है, सब दिखावा है, ये समझ जाओगे, करेक्ट। ये दुनिया भी सत्य नहीं है, बिकॉज ये नश्वर है, इस दुनिया में कोई आनंद नहीं है, वो भी समझ जाओगे। लेकिन क्या असली क्या नहीं है वो समझ जाओगे, क्या है वो आपको गिफ्ट मिलेगा, भगवान से या बड़े भक्त से। आप समझ रहे हो? Prabhupada says this, what it is you cannot know, what it is not you can know by your experience if you are intelligent. बुद्धि लगा के ये तो समझ सकते हो ये शरीर कुछ नहीं है, खाली हार्ड मास का हुआ, इतना समझ सकते हो। लेकिन क्या है, दैट इज स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्ण। क्या नहीं है वो तो चलो आप अपना दिमाग लगा, लेकिन क्या है, जस्ट लाइक इस सृष्टि को देख के आप भगवान को नहीं देख सकते, ये गलती सब लोग कर रहे हैं। इस सृष्टि को हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि को देख के सृष्टि के रचने वाले को नहीं समझ सकते। जस्ट लाइक इस मोबाइल को देख के आप ये समझ सकते हो एक इंटेलिजेंट आदमी ने बनाया, लेकिन वो आदमी के 4 हाथ हैं या 2 हाथ हैं, 3 सिर है, 5 सिर है, आप इस मोबाइल को देख के नहीं बता सकते वो कैसा दिखता है, हस्बैंड वो काला है वाइट है, आप नहीं समझ सकते मोबाइल को देख के, करेक्ट। ये समझ सकते हो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने बनाया, राइट। उसके लिए भी थोड़ा बुद्धि चाहिए, आजकल वो भी लोग नहीं मानते। जब आप इतने सुंदर सृष्टि को देखते हैं, ये ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, इतने समझ जाते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट भगवान है, और जिनका बुद्धि हमारे से करोड़ गुना ज़्यादा है, करोड़ भी कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत ज़्यादा बुद्धि है भगवान की, इतना आप समझ सकते हो। लेकिन क्या भगवान है, कैसे दिखते हैं, वो आपको स्पेशल मर्सी चाहिए। उसके लिए आपको, आप समझ रहे नहीं, गलती हमारी, हम क्रिएशन को देख के सोचते हैं कि हमने क्रिएटर दिख गया, नहीं दिखता। क्रिएटर तो अलग व्यक्ति है, पर्सन है, इसलिए उसकी सेवा होती है, और जब वो खुश हो जाते हैं अपने आप को रिवील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं।